तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देर आर 10 टाइप्स ऑफ ओथ्स इन द थर्ड शेड्यूल में ना 10 टाइप्स ऑफ ओथ्स मेंशन कर रखी है. द ओथ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, uphold constitution belongs to the CJI and CAG. Justice Nageshwar was the seventh such person to be directly elevated as judge in Supreme Court from the bar. तो Justice Nageshwar was the, आप ऐसा मोटा मोटा याद रखो कि he was directly elevated as a judge from the from the bar association, ठीक है, as judge in the Supreme Court from the bar, and he was seventh such person, right? Now the oath, that is true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold sovereignty and integrity of the India, and uphold the Constitution. ये जहाँ जहाँ आ रहा है आपका uphold sovereignty and integrity of India, true faith and allegiance, ये कुछ keywords हैं, इनको mind map बना लो, associate कर लो कि these keywords come in the oath of CJI as well as CAG. Now all cases regarding interpretation of the Constitution of India can be brought to the Supreme Court of India under its appellate jurisdiction. तो interpretation of Constitution of India is related to appellate jurisdiction of the Supreme Court. The concept of judicial review was propounded for the first time in Marbury versus Madison. So judicial review का जो first time concept आया था वो Marbury versus Madison 1803 में आया था by John Marshall, the then Chief Justice of American Supreme Court. तो ईयर याद करना ही ईयर इम्पॉर्टेंट है. 1803 में आया था concept of judicial review for the first time in the case Marbury versus Madison of 1803 and in America, and by the then Chief Justice of American Supreme Court, Sir John Marshall, ठीक है. Then interpretation of Constitution of India अगर करना है तो that falls under the appellate jurisdiction of the Supreme Court. And Justice Nageshwar के बारे में बताया कि he was the seventh such person to be directly elevated from the Bar Association to the post of Supreme Court Judge. And ये जो true faith and allegiance and uphold sovereignty and integrity of the India and uphold the Constitution, ये सारी terms आपको keywords oath में मिलेंगे. Oath which is related to Comptroller, Auditor General as well as CJI, Chief Justice of India. Okay, moving on. So judicial activism should not become judicial adventurism. This statement was said by Justice A.S. Anand. Judicial adventurism word याद रखो और A.S. Anand याद रखो बस. So both High Courts and Supreme Court of India have jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. Supreme Court does not have exclusive jurisdiction in this case. Constitutional validity of central laws, ये एक बात है जिसमें Supreme Court और High Courts का jurisdiction equal है, ठीक है. Supreme Court का exclusive jurisdiction इस मैटर में नहीं है. कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का चेक करने का जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ट्रू या फॉल्स. सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज ये काम हाई कोर्ट्स भी कर सकते हैं. दैन पार्ट 18 की बात करें तो यहाँ पे एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हमने पढ़ा था. 352 आर्टिकल से 360 तक है. तो 352 के अंदर आपका जो नेशनल इमरजेंसी लगता है उसके कुछ कारण दिए रखे हैं, जैसे वॉर है, एक्सटर्नल अग्रेशन है और आर्म्ड रेबेलियन है. जबकि 356 विच इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. और 360 की बात करें जो थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया विच हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड सो फार. तो 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, जो कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के केस में लगाई जाती है. इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 month. However, if Lok Sabha is dissolved before approving emergency, such an emergency continues for 30 days from the first sitting of the reconstituted Lok Sabha. ये बहुत ही important point है. वैसे तो national emergency under 352 अगर president proclaim करता है तो it must be passed through parliamentary approval within 1 month. लेकिन और parliamentary approval में भी लोक सभा का उसमें पहले होता है. However, if Lok Sabha is dissolved before approving emergency, यानी कि 1 महीने के भीतर ही इमरजेंसी लगने की 1 महीने के भीतर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर अप्रूविंग द इमरजेंसी, such an emergency continues for 30 days from first sitting of reconstituted Lok Sabha.
provided that the Rajya Sabha has in the meantime approved it. Provided that the Rajya Sabha has in the meantime approved it. Now it is approved by both the houses. If it is approved by both the houses, it continues for 6 months, and this way it can be extended indefinitely. After the emergency has ceased, the laws made by the center in the state subjects exist till 6 months more from the date of ceasing of emergency. तो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं. मोटा मोटा ये था कि जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट, इट मस्ट बी पास्ड और अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 month, एंड दैट इज़, and by parliament I mean Lok Sabha. Now if the Lok Sabha gets dissolved within 30 days even before approving the national emergency, then the national emergency shall continue to exist for 30 days after the new Lok Sabha has been reconstituted and sits for the first time. तो उस first sitting से 30 days more तक emergency shall continue. Meanwhile, if the Rajya Sabha has passed it, because Rajya Sabha is the permanent house. So meanwhile, if the Rajya Sabha has approved it, then Lok Sabha, even after getting dissolved before approving the emergency continues to exist for 30 days after the Lok Sabha is constituted and sits for the first time. ठीक है. Now after the emergency has been removed, the provisions made by center in the state list exist till 6 months more from the date of ceasing of emergency. ठीक है. So that is in the national emergency. तो ठीक है, यहाँ तक कर लिए थे. नेशनल इमरजेंसी 352 के बारे में डिटेल में देखे. उसके बाद 354 में क्या है? It is actually related to the 352, that is national emergency. So president can modify the constitutional distribution of revenues between the center and the states during national emergency. तो जो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से यूजुअली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ किया जाता है, उसको चेंज कर सकता है. कौन? प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एंड दिस इज mentioned in article 354. right, then 83 sub clause 2 भी related है 352 से. so life of the Lok Sabha can be extended beyond 5 years, 1 year at a time, indefinitely. So these are like couple of articles which are related to national emergency, but usually when you read them, लोग समझते नहीं हैं, उनको बस पढ़ के छोड़ देते हैं, but they are actually applicable in under the course of a national emergency, such as the Lok Sabha tenure can be extended beyond 5 years, 1 year at a time, indefinitely. अब यहाँ पे जो word indefinitely है, that is actually coming from this word indefinitely, extension of national emergency. यहाँ पे it can be extended indefinitely. तो ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि आर्टिकल 354 में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है वो प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. और सिमिलरली आर्टिकल 83 क्लॉज 2 या सिंपली 83 भी याद रखोगे तो चलेगा कि लोकसभा का टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years. लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years, 1 year at a time, indefinitely. ठीक है, that is given in 83. Now 358 and 359 की बात करें, so these are effects of emergency on fundamental rights, and while 358 suspends 19 due to war or external aggression, the 359 suspends all the fundamental rights except 20 and 21, and one cannot move court. तो मतलब 20 और 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तो उनके सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते. दैट इज़ द खासियत ऑफ 358 एंड 359. सो 358 में क्या होता है कि 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 विच इज़ फ्रीडम, जो भी हम फ्रीडम वाले फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, और वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ये दो वर्ड्स और जोड़ लेना. सो 358 सस्पेंड्स 19 अंडर सिचुएशन ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन. The 359 suspends all the fundamental rights except 20 and 21, and 1962, 1971 and 1975. तो ये मेरे ख्याल से 3 इंस्टेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है. एक बार कंफर्म कर लेना क्या यही 3 साल हैं जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था, 1962, 71 and 75.
Then we come to 356, which is President's Rule, and President Rule can act on a report of Governor or otherwise too. मतलब रिपोर्ट ऑफ गवर्नर मदद करती है बट उसके बिना भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. सो प्रेसिडेंट एक्वायर्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, while the parliament passes the state's bills and budgets. President's rule must be approved within 2 months by both the houses. It can be extended up to 3 years. तो यहाँ पे ये important है, and must be approved within 2 months by both the houses with the approval of parliament every 6 months. However, after 1 year extension requires election commission of India's report as well. तो देखो president rule में ना थोड़ा सा और institutions इसमें जुड़े हुए हैं. जैसे रिपोर्ट ऑफ गवर्नर आम तौर पे कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बट इसके बिना भी किया जा सकता है. एंड द प्रेसिडेंट एज्यूम्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट डिसमिस हो जाती है, एंड पार्लियामेंट पासेस द स्टेट्स बिल. तो बिल में मनी बिल भी अगर हो जाएगा तो वो भी स्टेट का मनी बिल भी पार्लियामेंट की देख रेख में पास होगा. ठीक है. और प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 months by both the houses of the parliament, and it can be extended up to 3 years. लेकिन after the first year उसको second year में extend करने के लिए, जो कि extraordinary period बोलते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसको सेकेंड ईयर में एक्सटेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट ज़रूरी पड़ जाती है. ठीक है. नाउ KM नामीबियार ने क्रिटिसाइज़ किया था while criticizing the emergency powers of the president, call it as fraud upon the constitution. तो ये पूछ सकते हैं कि ये फ्रेज़ किसने इस्तेमाल किया था, फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो द टर्म आर्म्ड रेबेलियन रिप्लेस्ड द ओरिजिनल इंटरनल डिस्टर्बेंस, और ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस था. ठीक है. तो देखो नेशनल इमरजेंसी में हम लोग 3 कॉजेज़ पढ़ते हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. तो आर्म्ड रेबेलियन बाद में लिखा गया. एक्चुअली आर्म्ड रेबेलियन के पहले लिखे जाने से पहले वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था. Then reduction from 2 months to 1 month of parliamentary continuance or approval of national emergency. तो ये भी जो है 1 month पे ले आ दिया गया था. parliamentary approval for national emergency is needed within 1 month of proclamation of national emergency. ये भी पहले 1 month नहीं था, 2 month था. अभी आज की डेट में 1 month है. And 358 जो हमने पढ़ा सस्पेंड्स आर्टिकल 19, 358 सस्पेंशन ऑफ 19 was added. सो ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, दीज 3 थिंग्स वर एडेड थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. एंड फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट यूज द रीज़न ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस टू लॉन्च एमरजेंसी वॉज जो 1975 वाला एमरजेंसी है, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस का पहली बार एप्लीकेशन हुआ था. ठीक है. तो अभी लग तो गई है बट हटाओगे कैसे? तो सिंपल मेजॉरिटी से आप हटा सकते हो. वेयर एज एक्सटेंशन एंड अप्रूवल, एक्सटेंशन एज वेल अप्रूवल के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. आर्टिकल 365 में लिखा है कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद यूनियंस डायरेक्शन. तो उस केस में भी जो है प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है. प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है डिपेंडिंग इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द यूनियंस डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 365, या फिर 356 में लिखा है कि द जो गवर्नर है, गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से भी लग सकता है प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर ऑफ मोर टू लेस नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इज बूमो. ये स्टेट्स की बात हो रही है. नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल तो BUMO. तो अब देखो ये ऐसा है कि मुझे इसका निमोनिक अभी याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे U ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश. तो in the order of more to less number of times president rule that has been imposed in various states. तो ये B से कौन सा स्टेट है तो वो देख लेना, फिर U से कौन सा है, तो M से कौन सा है, और O से कौन सा है. तो दिस डिनोट्स की B वाला जो है, B वाले स्टेट में सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, फिर उससे कम बार U से लगाया गया है U वाले स्टेट में. ठीक है. तो ये निमोनिक याद रख लेते हैं फ़िलहाल, बात देख लेंगे, हम कंफर्म कर लेंगे गूगल से. So by default only state council of ministers are dismissed. तो president administers the state with chief secretary. मैंने बताया ना कि president यहाँ लिखा हुआ है कि president acquires all the powers of the state government. तो actually chief secretary होता है जो मदद करता है president को while exercising powers of the state government. और state council of minister तो dismiss हो जाती है.
and Parliament passes all the bills in the state list, including the money bills, and the president rule must be approved within 2 months by both the houses. हालांकि ये पहले 1 month हुआ करता था. Then president rule can be extended up to 3 years, but 1 साल के बाद extend करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट चाहिए. खैर, बूम ओवर द स्टेट्स, BUM ओवर द स्टेट्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा से सबसे कम बार प्रेसिडेंट रूल लगा है. तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट विद चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल एंड पार्लियामेंट टेक्स ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो देखिए शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस की जाती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्टेटमेंट में लिख देगा कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसमिस हो जाती है. ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है, बिकॉज it's not the state legislative assembly that gets dissolved, it is the state council of ministers that gets dismissed. ठीक है. Now state legislative assembly is not dissolved, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे. council of ministers, state council of ministers are dissolved. Now बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में एक कमेंट्री आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि प्रेसिडेंट रूल को स्पेरिंगली यूज़ किया जाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल इज़ अंडर जुडिशल रिव्यू. ये फाइनल वर्डिक्ट था. और द first time of imposition of president rule was Punjab 1951 and then Pepsu 1953. तो first time वाला याद रखते हैं, पंजाब 1951 and then Pepsu 1953. और अभी हमने बताया कि BUMO और एक और चीज़ थी कि सिंपल मेजॉरिटी से आप हटा सकते हो, जबकि एक्सटेंशन और अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. और इंटरनल डिस्टर्बेंस से लगने वाली पहली बार कोई अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस से अगर लगने वाली कोई पहली बार इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था तो इट वाज इन 1975. और ऊपर हमने बताया कि 1962, 71 एंड 75 में. सो आई थिंक दे वर नॉट प्रेसिडेंट रूल, दीज आर द नेशनल इमरजेंसीज. ठीक है. एंड नेशनल इमरजेंसी के साथ प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो 1975 में नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई थी और फिर 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे भी प्रेसिडेंट रूल लग गया था. तो दो लग सकते हैं, वो भी ठीक बात है. फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट यूज्ड द रीज़न ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस टू लॉन्च emergency was 25th of June 1975. ठीक है. 25th of June 1975 में अगर emergency लगी थी, national emergency लगी थी, वो भी तो president ही proclaim करता है. ठीक है. It was not president's rule, it was national emergency. और उसके लिए reason क्या दिया गया था? internal disturbance दिया गया था. ठीक है. Now the tax imposed on the stock market and futures belong to the union. It is levied and collected by the union but assigned to the states. President causes the report of Finance Commission to be laid before the Parliament. Finance Commission has three functions: to recommend distribution of net proceeds of taxes between the Union and states, determine principles which should govern grants in aid to states, and suggest measures to increase the consolidated fund of a state for development of local bodies in the state, or any other matter referred by the President. जो टैक्स बनता है स्टॉक मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट से, वो एक्चुअली में बिलोंग तो यूनियन को करता है, बट इट इज़ लिवाइड एंड कलेक्टेड ऑल्सो बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स. ठीक है. सो इट इज़ लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स. प्रेसिडेंट कॉजेज. ठीक है. रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इसके लिए मैंने आर्टिकल भी पढ़े थे. 278 था क्या? आई विल हैव टू बी, एनीवेज वो मैं देख लूँगा. तो the tax imposed on the stock market and future, वो levied and collected by the union but assigned to the states है. इतना याद रखना है. इसके बाद फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन केसी नियोगी थे और ये 1951 ईयर इंपॉर्टेंट है. The 14th Finance Commission recommended an increase in the share of states in net proceeds of taxes to 42% from 32%. बट अभी तो हम 15th देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. 15th Finance Commission was headed by N.K. Singh, who gave two reports. एक तो ये वाली आई थी और एक ये वाली आई थी. Now the Finance Commission has a chairman and 4 other members whose qualifications etc. are determined by the Parliament. ठीक है. 4 other members होते हैं एक चेयरमैन के अलावा. तो ये 15th Finance Commission अभी हमारा चल रहा है. Then Article 355 में लिखा है कि it is the duty of the Union to protect the states against external aggression, and 5 members selected to draft लोकपाल bill from civil society. अब देखो इसमें 5 members elect किए गए थे, तो इसमें देखो शांति भूषण और प्रशांत भूषण तो याद रखना ही है. अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल तो याद ऑलरेडी है.
आपको बस संतोष हेगड़े याद रखना है। तो जो 5 मेंबर आपका लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए चूज़ किए गए थे उनके नाम याद रखने हैं। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे, शांति भूषण और प्रशांत भूषण और एक संतोष हेगड़े, ये 5 लोगों के नाम याद रखने हैं। अभी नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ है, ये 1992 में बना था, ध्यान रखना। इसका एक्चुअली मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, देखो ये मई मंथ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तो 1993 लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। करंटली देयर आर 6 माइनॉरिटीज़। देखो बुद्धिस्ट है, जैन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और सिख और ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं। सिख और ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, ठीक है। ज़ोरोएस्ट्रियंस पारसी होते हैं और पारसी को हिंदू नहीं माना जाता है, ठीक है। नाउ फिर से बता रहे हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, जैन्स हैं और मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं और ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं। ये 6 को हम माइनॉरिटी मानते हैं करंटली एज़ पर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। जैन्स लेटेस्ट एडेड इन 2014 में जैन्स को ऐड किया गया था। द ज़ोरोएस्ट्रियंस आर नॉट द स्मॉलेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी, याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज एंड प्रोटेक्ट्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ओनली, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर माइनॉरिटी शब्द दिख रहा है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो और ये ज़ोरोएस्ट्रियंस आर नॉट द स्मॉलेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है लोगों में। और जल्दी से इनके ईयर्स देख लेते हैं। देखो NHRC तो हमको याद है 1993 में बना था, बट मंथ याद करना इंपॉर्टेंट है। तो इट वाज सितंबर और अक्टूबर और लेटर हाफ ऑफ द ईयर में बना था NHRC, जबकि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी देखा जाए तो फर्स्ट या फॉर्मर या पहले हाफ ऑफ 1993 में बना था नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़। 1993 में एक और चीज़ बनी थी, दैट वाज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वही मैंने यहाँ पे बताया है। सो रहे हो गया। सो सितंबर अक्टूबर 1993 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ बना था 1993 मई में, ओके। देन ये हमको ऑलरेडी बताया कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना था, और ये भी हमको पता है कि इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बना था, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बना था। बट यू हैव टू कंफर्म द मंथ, बिकॉज फिर इसको अगर फाइनेंस कमीशन से रिलेट कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज फाइनेंस कमीशन नवंबर 1952 में बना था पहला, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपको देखना पड़ेगा फिर कौन से महीने में। मेरे ख्याल से फाइनेंस कमीशन से पहले ही बना होगा ये NDC। फिर नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, ये भी 1992 में बना था। तो अभी तक हमने 1992 का ये पहला देखा है नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। हालांकि 1993 में 3 बन गए थे, एक माइनॉरिटी का बना था मई में, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था सितंबर अक्टूबर 1993 में, और एक बस, ठीक है। और वुमेन का तो 1992 में बना था, और NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये 2005 में बना था। और फाइनली सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल नंबर 98 में इसका जिक्र है, ठीक है। अभी मज़े की बात यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन विमेन and NCPCR, these are not constitutional bodies, whereas National Commission for Review of Constitution, also known as Venkat Chalaiya Commission, was formed through a resolution by NDA government in 2000, that means non-statutory and non-constitutional। तो वेंकट चलैया कमीशन याद रखना, ये एक नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही सिनोनिमसली वेंकट चलैया कमीशन भी बोलते हैं, और ये एक गवर्नमेंट गैजेट से बना था, नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई भी कहे वेंकट चलैया कमीशन is equal to National Commission for the Review of Constitution, yes that is true, and that is non-constitution, non-statutory, ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं।